Hello friends, hopefully you people have enjoyed the festival and now ready to work, and yesterday probably you have watched the videos related to the Newman chapter number 5, which is understanding elementary shapes, and the geometrical shapes which we had learned in the chapter number 4 as the little bit more detail is given in this chapter, understanding elementary shapes. So in this yesterday's video, I have explained the observation of the comparison of lengths of line segment. How to compare two line segments if it is given to compare. So for that, a few different ways we had learned, which is the first one, the comparison through the observation. But through the observation, we can't get the exact perfect idea about the length of the line segment. Might be there are many mistakes occurs. The major mistakes is the observation. If it is more difference between the lengths of the line segment, then we can say that one is shorter and another one is longer. But if there is a very small difference between two line segments, like your AB and CD, there is a more difference. We can say through the observation that AB is longer and CD is shorter. But in these two line segments, we can't say from the observation that what is the difference between the length of these two line segments. Okay, so there might be, it is not preferable by the observation. If there is a very small difference between these two line segments, then we can't say it. So through the observation, compared by observation, it is not more advisable to compare the line segments, length of the line segments through the observation. Then the second method we had done about the comparison by tracing. So tracing paper to use करके also we can compare, but we need the tracing paper to draw it to the another side and to compare how much long and short is that. We can't see the exact idea about the observation comparison by tracing. So it is not that much advisable. And then we had learned about the comparison using ruler and divider. If we use the ruler only, then the ruler which you have in your compass box, it has 15 centimeter length, and there are centimeter and inches are drawn on the ruler. It is a transparent ruler because it is a plastic ruler which you are using generally. So it depends upon if whenever we observe the length of the line segment through the ruler. Suppose I have a ruler here, and which is, this one is the ruler which I have, teachers are using just now. This here we have centimeter length on this line, and here at the bottom it is inches length, same which is drawn over here. If I use this ruler to measure this line segment of this one, okay, from 0 to this, if I will observe it, then what will happen? I could not get the exact idea. It is depends upon the thickness of the ruler. Over here it shows that 25 centimeter. This is the 25 centimeter, but exact idea 25.1 centimeter. It is given. Okay, so same way, if we notice it from here. This is magnifying because on the projector, that's why my ruler gives me the different length. But your ruler, what is given over here? 1, 2, 3, 4, 5. And 6 is not exactly covered it up. Little bit less than 6. That's why it is given that 5.8. Okay, but it depends upon the length of the ruler, width of the ruler, and it depends upon the observation angle of the eye and the point. If we observe it exactly vertically, we get the exact idea. If we observe it slanting, then might be there is a mistake. So this is through ruler, it is not advisable. So then we have another option, and which is using divider. So using divider, we can measure the length of the line segment easily. And for that, what to do? That also we had done in the previous class. What to do? This is the mistake occurs whenever we
use it. Now divide it into 2 point edges are pointed edges are there. Put one edge at the first point, then broad it, and then put another sharpen edge in the second point of the line segment. Then put it exactly on the ruler. Adjust 0 with one sharpen edge and find out the second sharpen edge point. So you can measure the line segment using this system, and without any mistake we can do it. So this is more advisable using divider and ruler. This one the activities were there, which also I told in the video, that you take the different size piece of paper and you measure it using divider and ruler. Or you can take the instruments which you use regularly, and if the top is flat, then you can measure it. So I suggested you to use it yourself. Today we are moving ahead with exercise 5.1. Over here I am just reading the questions. First is, what is the disadvantage in comparing the line segments by mere observation? So just now we discussed that through the mere observation, if there is a big difference between two line segments, we can say that this is shorter but this is longer. But if there is a very small difference between two line segments, we can't say which one is long and which one is small. Through the mere observation, it depends upon the observation of the person, perfection of the person. That's why it is not advisable. So there are these advantages of comparing the line segments by mere observation. Second is, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of the line segments? So through the ruler, just now I told you, it depends upon the width of the ruler and the angle or the position of the eye and the observation. Then only we can take the best result. So these two are limitations whenever we measure the length using ruler. So it is better use a divider than a ruler. Third question, draw a line segment say AB. किसी भी एक line segment को draw करो. Then take any point C line in between A and B. Measure the lengths of AB, BC and AC. तीनों के तीनों को measure करो. If AB is equal to AC plus CB, then यहाँ पे एक बहुत बड़ी नोट दी है. If A, B, C are any 3 points on the line such that AC is plus CB is equal to AB, then we can say that C lies between A and B. हम देखते हैं अभी solution में. According to our style, I will give you the solution. चलो next question number 4 जो कि 3 के related ही है. If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 3 cm, and AC, this A and C, is 8 cm, which one of them lies between other two? Obvious, AB, BC and AC, where AC is the longest one, and the length of AB is 5 and BC is 3. 5 plus 3 is 8, which is equal to AC. That's why B lies between A and C. We can say that. Verify whether D is the midpoint of line segment AG. Midpoint means what? If point B divides line segment AG into equal 2 parts, then we can say that D is the midpoint of AG. This is line segment AG. This is D is the midpoint. How do we say that? So by the observation we can say that 1, 2 and 3 cm is there. 1, 2 and 3 cm is there. AD is also 3. DG is also 3. And AG is equal to 3 plus 3 is equal to 6. So we can say that D is the midpoint of line segment AG. We will solve it. Okay. If B is the midpoint of line segment AC and C is the midpoint of line segment BD, where A, B, C, D lie on the straight line. B जो है वो AC का midpoint है, C जो है वो BD का midpoint है. Then A, B, C, D कैसे मिलेंगे? वो ढूंढेंगे और प्रूव करना है. Say why AB equal to C. Draw 5 triangles and measure their sides. हमको 5 different measure के triangles draw करने हैं.
check each case. The sum of the lengths of any two sides is always less than the third side. दो साइड की जो मेजरमेंट है उसको हमको ऐड करना है और we have to check it out if it is less or greater than the third one side. So keep watching. We will solve it soon. So friends, here it is, the question number 1. What is given there? What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? So major disadvantage through the mere observation, as we discussed, it is because of if the big difference between the line segment, we can say that this is shorter and rounder. But the disadvantage is comparing the line segment, it is not perfect, or we can say that exact measurement. We can't say the exact measurement through the observation. So this is a major disadvantage. The question is, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? Why it is better to use the divider than a ruler? Because if one is, it depends upon, through the ruler whenever we observe, depends upon the thickness of ruler and second, the angle between eye and observation. Okay, so if it is observed vertically exactly 90 डिग्री पे तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट आता है, लेकिन स्लैंटिंग में अगर ऑब्जर्व कर लिया तो वो डिफरेंस आएगा. सो दैट्स व्हाई दीस टू आर लिमिटेशन ऑफ रूलर ऑब्जर्वेशन. दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर. डिवाइडर से ऐसी कोई मिस्टेक्स आने वाले नहीं है, ऐसा हमको समझाने की कोशिश टेक्स्ट बुक में की गई है. देन आफ्टर तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे हो गए. आपको मैं सॉल्यूशन भेज रही हूँ, आप सॉल्यूशन से भी लिख सकते हो, या यू कैन ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज नाउ यू आर ग्रोन अप इन 6th स्टैंडर्ड, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. कहीं से भी कॉपी मत कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिएगा. चलिए अभी आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे. What is question number 3? It is here. Draw any line segment. तो पहले तो हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB. AB को हम ड्रॉ करें. चलिए मैं ले लेती हूँ मेरे रूलर और इससे हम लोग ड्रॉ करते हैं. एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है. मैं ले लेती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. बराबर है. जैसे मुझे नाम देना है AB. हो गया. Then take any point C, line between AB. तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी ले लेती हूँ, ये C है, ठीक है. Between A and B, measure the lengths of AB and BC. अभी मुझे मेजर करना है AB, BC and AC तीनों को. मैं AB को मेजर करती हूँ, which is actually 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे according to my line segment, AB is 20 सेंटीमीटर, ठीक है. Then AC, मुझे AC मेजर करना है जो कि नियर अबाउट है 15.3 सेंटीमीटर. इतना है AC जो है वो 15.3 सेंटीमीटर. एंड ये BC या CD we can say that which is जो है वो है 15.2 सेंटीमीटर. देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा कि रूलर से जब हम मेजर करते हैं BC और CD can see that it is 15.2 सेंटीमीटर. कहीं पे मैंने गलती कर दी. ये दोनों ये क्या है, यहाँ से 0 से लेके सॉरी दिस इज 35 सेंटीमीटर. AB जो है वो 35
5 सेंटीमीटर। देखना अभी मैं वापिस एक बार कोशिश करती हूँ, मैंने कहीं पे गलती कर दी क्या? दिस इज 15.3 सेंटीमीटर, दिस वन इज आल्सो 15, नियर अबाउट 15 ही है दोनों। क्या है? 15 सेंटीमीटर, 15.5 है, 15.3 है एंड 15.2। हो गया? तो अभी हमको क्या करना है? तो AB, AC एंड BC का एडिशन है, AC प्लस BC। तो 15.3 प्लस 15.3 तो क्या आएगा? देखिएगा, यहीं से आपको परफेक्शन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10 एंड 30.5 हो गया। हमारा पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज एक्चुअली 35, दिस इज 30.5 है। तो अभी हमको कहीं ना कहीं हमारा मेजरमेंट में जो है वो मिस्टेक है। तो हम देख लें यहाँ पे, वापिस एक बार देख लूँ। सॉरी, दिस इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर का गैप है। 16 17 है ये, और ये 17.17 है। दिस इज 17, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? तो 5 7 प्लस 3.5, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, 7 7 जा 14, 34.5 का डिफरेंस यहाँ पे भी आ गया, बराबर। तो जब हम रूलर से जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये मिस्टेक होती है, लेकिन इट इज नियर बाय 45। तो हम क्या, हमको प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC प्लस CD। तो AB क्या है? 35, AC प्लस CD भी एग्जैक्टली नियर बाय 35 है, 35 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 35। सो दैट्स व्हाई AC प्लस CD जो है वो 35। तो ये प्रूव हो गया क्या? AB इज इक्वल टू AC प्लस CD, ठीक है। AC प्लस CD हो गया। तो ये AC प्लस CD हो गया। देन वी कैन सी दैट, मानी अगर ABC प्रूव क्या करना चाहते हैं कि ABC जो है वो एक लाइन पे है एंड AC प्लस CD इज इक्वल टू AB है, तो वी कैन से दैट द C इज इन द मिडल वन ऑफ A एंड B के बीच में। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A C एंड B, मानी C जो है वो A एंड B के बीच में, एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है लेकिन वो बीच में है। तो ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है। आपकी नोटबुक में किसी भी मेजर का एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, बीच में C रख लीजिए, फिर में लेंथ मेजर कीजिए तीनों की एंड देन यू प्रूव दिस स्टेटमेंट। इट विल प्रूव, लिटिल बिट हमारा जो है वो डिफरेंस रहता है, लेकिन इट विल प्रूव। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर हमको 4 पे जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, if ABC are 3 points in a line such that AB equal to 5, BC is equal to 3 and AC is equal to 8 सेंटीमीटर, तो हमको 5 सेंटीमीटर लेना है, सिर्फ 5। देखिए अभी आपको शायद, मुझे पूरा AC पहले लेना है 1 सेंटीमीटर, तो मैं पूरा AC ले लेती हूँ, यहाँ से लेके 0 और यहाँ पे आ जाएगा 8, इतना सा छोटा सा, ये 8 सेंटीमीटर है, बराबर है। हमारे शायद ये जो हमारी है, यस दिस इज 8 सेंटीमीटर, मेरे जो दिस इज पूरा AC जो है इसका मेजर क्या आया 8 सेंटीमीटर। अब मुझे AB जो है वो 5 सेंटीमीटर पे लेना है, B मुझे कहाँ लेना है 5 सेंटीमीटर, तो मैं ले लेती हूँ 5 सेंटीमीटर पे B, ये आ गया, यहाँ पे B आ गया। ये डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मानिए AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC is equal to 3 centimeter. So AC is equal to 5 plus 3 is equal to 8 centimeter. 5 is AB and 3 is BC. So we can say that AC is equal to AB plus BC, जो कि अभी हमने पहले किया।
क्वेश्चन नंबर 3 में सेम एज वेल. So what is given there? Which one of them lies between the other two? तो कौन सा बीच में आया? तो this one, D. ये B वाला जो है वो बीच में आया. तो B lies between points A and C. ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं. इसके आगे आप पॉइंट वर्ड ऐड करें. पॉइंट B lies between points A and C. तो इस तरह से आपको 5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. 1 सेंटीमीटर की AC हो जाएगा उस पे. फिर उस पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे B डिनोट करो, वो 5 सेंटीमीटर हो गया एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 3 और 4 नियर बाय है, दोनों कुछ नजदीक में नहीं है. फिर अभी आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, तो नंबर्स दिए गए हैं. D इज द मिड पॉइंट A, B, C, D, E, F, G और 0 से लेके 7 तक उस पे मेजरमेंट किया गया. मानिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. A, B, C, D, E, F and G. Between these two points, there is a difference of 1 centimeter. Now, verify whether B is the midpoint of AG. तो हम पहले AG का डिस्टेंस देख लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सेंटीमीटर. देखिए 0 to 7 है, लेकिन ये 0 to 1 निकल जाएगा. So A to G, what is the length of AG? 9 segment AG, which is total 6 centimeter. Why? Because it starts from 1. A is considering number 1 centimeter. 1 से 7 का distance 6 centimeter. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 centimeter. ठीक है? Now let us find out the distance between AD. A and D का distance कितना आएगा? 1, 2 and 3 centimeter. And DG का distance कितना आया? 1, 2 and 3 centimeter. So DG is equal to also 3 centimeter. मान हमें क्या हो गया हमारे पास exactly AG is equal to AD plus DG and यहाँ पे AD की लेंथ भी 3 है, DG की लेंथ भी 3 है और AG की क्या हो गई? 6. So from these we can say that the D is the midpoint. देखो D जो है ना वो AG को यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे डिवाइड करता है. मीन्स AG के exactly 2 equal parts. We can say that D divides line segment AG in exact 2 parts. कैसे exact 2 parts हो गए? Because AD is also 3 centimeter and DG is also 3 centimeter. So that's why it divides line segment AG in exact 2 parts. That's why D is the midpoint of line segment AG. ये AG का midpoint है. खुद के own words में भी आप आंसर लिख सकते. आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि D is the midpoint of AC. D is the midpoint of line segment AC. And C is the midpoint of B. तो हमें ढूंढना है कुछ. क्या ढूंढना है? देखिए यहाँ पे हम पहले तो हम B is the midpoint of AC ऐसा दिया गया है. तो मैं एक तो पहले तो मैं एक थोड़ी लॉन्ग वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ यहाँ तक की. बराबर है. चलो अभी क्या है, इसको मुझे देना है क्या? B is the midpoint of line segment AC. तो समझोगे ये AC है. बराबर. अभी B is the midpoint. तो मैं B midpoint पहले ले लेती हूँ इसका. This is the midpoint. तो ये भी हो गया. चलो
पॉइंट ऑफ BD, तो मुझे अभी BD यहाँ पे एक्सटेंड करना है, बराबर, यहाँ तक मैं लिखती हूँ। अब ये C मिड पॉइंट है और ये BD हो गया। Where ABCD lie on a straight line, A, B, C and D, वो तो हो गया। चलिए ये पूरे के पूरे 4 पॉइंट्स आ गए, लाइन सेगमेंट AD आ गया। नाउ व्हाट टू फाइंड, AB इक्वल टू CD, ये ढूंढो। इट इज ऑब्वियस, हमने कैसे लिया, तो हमने लिया जो है, तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सी ये पूरा जो मैंने लिया, दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, दिस वन, ओके, और यहां से मैंने लिया, दिस इज आल्सो 50 सेंटीमीटर, बराबर ना। ये 50 सेंटीमीटर है, दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ओके, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी 50 है, तो दिस वन इज आल्सो 25 सेंटीमीटर, बराबर। तो नाउ कैसे प्रूव करें, हमें प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन और द डिस्टेंस व्हिच आई हैव टेकन, उसके हिसाब से तो मैंने देख लिया। तो अभी मैं क्या करूंगी कि पूरा AC जो है दैट इज ऑफ 50 सेंटीमीटर मैंने लिया, B इज मिड पॉइंट, so B divides it into two equal parts, so क्या हो गया मेरा, AB is equal to BC is equal to 25 सेंटीमीटर, ये एक रिजल्ट आ गया। अभी दूसरा हम देखें, तो क्या क्या है, C is the midpoint of BD, तो मेरा BD का डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर। अभी हम देखें BD is equal to 50 सेंटीमीटर and C is midpoint of BD, so it divides BD into two equal parts, है ना, वो two equal parts में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट BC, so we can say that BC is equal to CD is equal to 25 सेंटीमीटर। so यहाँ पे आ गया हमारा कि AB जो है वो भी 25 है, और यहाँ पे आ गया कि CD जो है वो भी 25, so we can say that, so AB is equal to 25 centimeter and CD is equal to 25 centimeter. So AB is equal to CD. AB और CD जो है वो सेम हो गए, लेकिन आपको अगर 50 सेंटीमीटर तक नहीं जाना है, आप 20, 30, 10 कोई भी ले लो, अपने हिसाब से ले, ठीक है। लेकिन ये मेजरमेंट जब भी B आपकी करो, सी फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन A to C फर्स्ट, एक मेजरमेंट मैंने ले लिया, फिर उसका मिडल ढूंढा एग्जैक्टली, क्योंकि आपको यहाँ दिया गया है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो पहले AC ड्रॉ करो, फिर उसका मिड पॉइंट मींस यू डिवाइड AC इनटू टू पार्ट्स। अगर आपने AC 10 लिया तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे आप B ले, ठीक है। फिर क्या किया है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, C जो है, तो ये डिस्टेंस अगर 10 हो गया तो ये भी 10 होना चाहिए, तो मुझे यहाँ से यहाँ वापस ड्रॉ करना, ठीक है। और BD आप एक मेजरमेंट ले लो, जैसे BC अगर 5 सेंटीमीटर आया तो और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सटेंड करो, ठीक है। तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। Then you measure this length AB which will come 5, 5, 5, 5 के 3 स्लॉट आपको मिल जाएंगे। जैसे मुझे 25, 25, 25 के मिले, अगर आप 10 मेजरमेंट लगे तो 5, 5, 5 के 3 स्लॉट मिलेंगे। तो फिर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मानी AB एंड BC 5, BC एंड CD 5, तो AB एंड CD तो इक्वल हो ही गए। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे कि AB एंड BC सेम है एंड BC एंड CD सेम। क्या आया हमारे पास रिजल्ट, क्या आया
AB is equal to BC and BC is equal to CD. So AB और BC सेम है, लेकिन ये BC जो है वो CD के साथ सेम है. That's why AB जो है वो भी CD का इक्वल होगा. So we can say that AB is equal to CD. ये another way मैंने समझाया आपको. एक जो लाइन सेगमेंट है उसका मेजरमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के जितना है. दूसरा लाइन सेगमेंट जो है वो तीसरे लाइन सेगमेंट के जितना ही है. तो क्या हो गया? फर्स्ट वन इज आल्सो इक्वल टू मेजर ऑफ थर्ड वन. हो गया. इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में शायद हमको डिफरेंट साइज के ट्राइंगल लेने को बोला है, उनका मेजर करना है और मेजर करके ढूंढना है कि जो एक साइड का मेजरमेंट है वो अन्य दो अनदर 2 साइड्स के मेजरमेंट को अगर आप ऐड करो तो उससे कम आता है कि उससे ज्यादा आता है. इफ इट इज लेस देन और ग्रेटर, वो हमें प्रूव करना है. तो मैंने लाइन से ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करके शायद रखी है. इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर द साइड्स. हमको साइड्स मेजर करनी है. चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. ये होने वाला है नहीं, ऑलवेज लेस देन वो नहीं होगी. ठीक है, फिर भी हम लोग मेजर कर लेते हैं. सेंटीमीटर में मैंने ड्रॉ किया है तो मैं देख लेती हूँ. चलिए ये हो गया 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दूसरा भी मैंने लिया है, वो है 15 के बाद 16, 17, 18.5 सेंटीमीटर. ये साइज ए, सपोज मैं ए बी सी लेती हूँ. ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा अनदर इज 15 सेंटीमीटर. ये भी क्या हो गया 15 सेंटीमीटर. फिर पहले हम सबको मेजर कर लेते हैं. सपोज ये दूसरा मैंने ले लिया है विच इज ऑफ 32 सेंटीमीटर. दिस इज 32 सेंटीमीटर. P, Q and R. This one is of 46.5. 46.5. और यहाँ पे मुझे क्या मिलता है मैं देखती हूँ. दिस इज अप्रोक्सीमेट बिकॉज जो है 30.31 and 32 सेंटीमीटर. चलो यहाँ पे मैं नाम देती हूँ X, Y and Z. दिस इज ऑफ 25 सेंटीमीटर. ये है 25 सेंटीमीटर. ये जो है वो भी शायद उतना ही होगा. यस, इट इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर. और यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड वन में. दिस इज ऑफ 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर. ठीक है, ये एक और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है. इसे हम देखते हैं साइड्स को. 41, 2, 3 and 4. 44 सेंटीमीटर. मैं ये ले लेती हूँ L, M and N. चलो यहाँ पे क्या साइज का मेजरमेंट आता है? दैट इज ऑफ near about 22. And this one is of, मेजर करते हैं हम, approximate it is near about 38 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे एन ओ ले लेती हूँ. ठीक है, अभी इसका हम देखिए मेजरमेंट. तो 0 से लेके 31 सेंटीमीटर. दिस इज ऑफ near about 31.5. And
this is a near about 5, 6, 7, 8, 38 ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैडम ने जो मेजरमेंट लिए वही मेजरमेंट आप भी लो। मेरे मैग्नीफाई करके फिगर दिखाई देते हैं आपको प्रोजेक्टर पे, दैट्स वाई इसकी लेंथ जो है हमको बड़ी दिखती है। आप जब टेक्स्ट बुक में से ड्रॉ करोगे या नोटबुक में ड्रॉ करोगे इट विल बी स्मॉल साइज, तो आप उस हिसाब से कैसे करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे 15, 15, 18.5 प्रूव क्या करना है, मैं शायद AB प्लस BC करूँ तो AB प्लस BC 50 प्लस 50 तो क्या आया 40 सेंटीमीटर, और ये क्या है 18.5। सो वी कैन से दैट कि AB प्लस BC जो है वो ग्रेटर है इससे AB प्लस AC, ठीक है, और ये किससे बेटर है, ग्रेटर है BC से, ये बड़ा है। सेम आप यहाँ पे देखोगे तो PQ 32 32 तो PQ प्लस PR 32 प्लस 32 कितना आएगा 64, और ये क्या है 46.5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PQ प्लस PR जो है ग्रेटर है QR से। यहाँ पे समझो हम लेंथ बदल रहे हैं, सपोज XYZ मैं लेती हूँ XY प्लस YZ ये और ये, तो 25 प्लस 40 तो क्या आया 65। मानी हम बोल सकते हैं कि XY प्लस YZ जो है वो ग्रेटर है XZ से, क्योंकि XZ जो है वो 25 सेंटीमीटर। सेम वे यहाँ पे चलो ये दो लेंगे, बराबर है LM प्लस MM तो क्या आएगा 44 प्लस ये क्या है 38, तो ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 तो 12 हो गया 1, तो 3 4 प्लस 3 प्लस 1 तो 7 8 82 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये कितना है 22 है, तो वी कैन से दैट LM प्लस MM इज ग्रेटर देन LM। LN प्लस N यहाँ पे N आएगा, ठीक है। ये क्या लेना LN प्लस LN 44 MN 48 82 हो गया, एंड LM इज स्मॉल। ये MN OP में हम जाए, यहाँ पे मैं लेती हूँ MN प्लस NO ये वाला, तो 31 प्लस 38 क्या हो गया 69। सो MN प्लस NO जो है वो ग्रेटर है किससे MO से। ये MO 31.5 है, और ये एडिशन क्या हो गया 69। मानी यहाँ पे हमको ऐसा बोला गया है चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो नो it is not always less than the third side but it is always greater than the third side, ठीक है। अगर हम किसी भी दो साइड के लेंथ का सम करते हैं तो वो सम ऑलवेज ग्रेटर आता है, ग्रेटर 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 एंड ग्रेटर। सो ये प्रूव करना है। मैं सॉल्यूशन भेज रही हूँ लेकिन फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर आप किसी भी तरह के ट्राइंगल ड्रॉ कर दो 5, और मैंने जो मेजरमेंट सॉल्यूशन में लिया है अगर वो लेना है तो वो भी ले सकते हो। लेकिन किसी बच्चे को ये क्वेश्चन था कि मैंने उनको ड्रॉ करना नहीं आता है कैसे करें, तो ड्रॉ में तो क्या है लाइन सेगमेंट ही है, तो लाइन सेगमेंट तो रैंडमली ड्रॉ कर दो, फिर पेंसिल से आप उसको लेंथ जो है वो मेजर कर लो और ये प्रूव कर दीजिए, ठीक है। कोशिश करना अगर 5 नहीं ड्रॉ कर सको तो 3 करना, 3 नहीं कर सको तो 2 करना, 2 नहीं तो 1 ड्रॉ करना, लेकिन करना जरूर, बराबर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लियर होती है, कंप्लीट होती है। आपको ये आज ही नोटबुक में करना है क्योंकि टुडे इज द ट्यूसडे, टुमारो वेडनेसडे हमारा क्लास नहीं है, थर्सडे को वापस मैं दूसरा वीडियो भेजूंगी। बेटर बिफोर दैट यू कंप्लीट, ठीक है। सी ज्योमेट्री से डर नहीं जाना, इट इज इजी
बट एज आई टोल्ड यू मैथ्स नीड्स हार्ड वर्क, प्रैक्टिस करना है। टीचर पढ़ा रहे के हिसाब से भी हमारी भी मिस्टेक होती है, आपकी भी हो सकती है। तो फिर आप लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के किसी भी टेंशन के बगैर मैथ्स करने को बैठेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।